Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam has said, Shaitan has never been seen more disgraced, more humiliated, and more down than on the day of Arafah. Because he sees Allah's rahmah showering on the congregation and Allah forgiving people. So he bites his teeth and he says that I made them sin and I worked so hard for so long and all my work has gone into vain within a few seconds by them just shedding few tears and crying in front of Allah. Allah has forgiven them. So this is what makes him bite his teeth and get angry. So tomorrow is very barakati day, and tomorrow night is also barakati night because it's the night of Yawmun Nahar, night of Eid. And Imam Shafi'i Rahmatullah Alayhi said, whoever stays awake in 5 nights, his heart will not die the day when hearts die. And he included in there the 2 nights of Eidain, Eid al-Fitr and Eid al-Adha. And tomorrow night's barakat is such that it is connected to Arafah as well. So the day of Arafah has 2 nights, the one before it and the one after it. So because of Arafah, both nights are virtuous. So we should try and spend tonight in ibadat as well and tomorrow night in ibadat as well. Alhamdulillah, over here we try to stay after Isha, read some Quran, pray some tahajjud, and then make dua at maybe around about 11:30. So inshallah today we will extend that a little bit and see if we can increase our worship. Ladies at home should also increase their worship in these barakati moments. May Allah give us tawfiq to do so. Because of the munasabat of Hajj, I have thought that we will talk about Hajjatul Wada' of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We have this book of Hazrat Shaykh Nawwarallahu Marqadahu, Fazail Hajj, and Hazrat Shaykh Rahmatullah Ali has very nicely summarized the Hajjatul Wada', farewell Hajj of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. He's taken it from Zadul Ma'ad of Ibn al-Qayyim. I also had a look at Zadul Ma'ad, but Ibn al-Qayyim goes into too much detail. Every mas'ala he goes into detail, and then I looked at this Hajjatul Wada' wa Umratul Nabi sallallahu alayhi wasallam of Hazrat Shaykh as well. It's very nice, very good. This is with tahqiq, alhamdulillah. So we have gone over that as well, but I think it is more appropriate if I read it from over here. Hazrat Shaykh Rahmatullah Alayhi writes, इसमें सारे उलमा का इत्तिफाक है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद सिर्फ एक ही मरतबा हज किया है सन 10 हिजरी में, जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी साल था. After hijrat, Prophet sallallahu alaihi wasallam only performed 1 hajj, 4 umrahs and 1 hajj, and that was in the year 10 after hijrah. इस सफ़र में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ज़ुहूर हुआ कि किसी रुख से रुखसत होते वक्त हुआ करते हैं, इसी वजह से इसका नाम हज्जतुल वदा यानी रुखसत का हज पड़ गया. गोया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ ताला शानहू के यहाँ जाने के लिए इस सफ़र के इज्तिमा के वक्त सारे मुसलमानों से जो हाजिर थे रुखसत हो गए. ड्यूरिंग दिस सफ़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड वर्ड्स which indicated towards farewell, bidding farewell. And because of that, this Hajj was named Hajjatul Wada', the farewell Hajj. Prophet sallallahu alaihi wasallam probably got indication that his time on this earth is not much, very little. So this is why he said these words. सफ़र हज की इब्तिदा के वक्त हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरादे का ऐलान फरमाया तो हज़ारों की मिक़दार में सहाबा-ए किराम ने हमरिकाबी और मईयत का फ़ख्र हासिल करने के लिए हज का इरादा फरमा लिया, और जो ख़बर सुनता गया वो हमरिकाबी की कोशिश करता गया. इनमें से एक बड़ी मिक़दार मदीना तय्यबा रवानगी से कबल ही पहुँच गई, और जो वहाँ हाजिर न हो सके थे वो रास्ते में मिलते रहे, और जिनको इतना भी वक्त
न मिला वो मक्का मुकर्रमा और बाज़ बराह रास्त अरफात पहुँचे। गर्ज़ ये कि बहुत कसीर मजमा इस हज में हुजूर के हमरकाब था जिसकी मिक़दार 1,24,000 बताई जाती है। लम्हात हाशिया अबू दाऊद। Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam announced that I am going for Hajj this year. Because of this announcement, many people, in order to join the Prophet sallallahu alaihi wasallam and participate in his Hajj, arrived at Medina Munawwara from the neighboring areas. And many joined him along the way. And many joined him in Makkah Mukarramah. And there were some who rushed to Arafat and joined him in Arafat. And we will read that they asked, what is Hajj? And Prophet ﷺ said, Hajj is Arafah. Whoever came to the plain of Arafat on the day of Arafah. Can you notice the difference? Arafat is the name of the place, and Arafah is the name of the day. So whoever came to Maidani Arafat on the day of Arafah has got the Hajj. So many people arrived there. An estimated amount of those who participated in that Hajj is 124,000 Sahaba. Hazrat Jabir ibn Abdullah said in the hadith that when Prophet ﷺ set forth, all you could see is Sahaba ahead of him, behind him, on his right, on his left. This huge caravan was moving towards Makkah Mukarramah. Huzur Aqdas sallallahu alayhi wa sallam मदीना मुनव्वरा में ज़ोहर की नमाज पढ़कर रवाना हुए और असर की नमाज ज़ुल हुलैफा में पहुंचकर अदा फरमाई. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम prayed Zohar in Medina Sharif and then Zul Hulayfa, which is about 3 to 4 miles from Medina Sharif. But now Medina Sharif has stretched out and Zul Hulayfa has become part of Medina. It's an area, a neighborhood, a suburb of Medina Sharif. But at that time it was a different area altogether. Medina Sharif was very small. So he traveled from Medina Sharif to Zul Hulayfa, 3 miles down the road, and he camped there, stayed the night over there, and in the morning he left from there for Makkah Sharif. Now what was this day and date? Sheikh mentions some ikhtilaf in there. इसमें मुअर्रिखीन के इख्तिलाफ है कि रवानगी की तारीख़ क्या थी. 24, 25, 26 ज़ीक़ादा 3 कौल हैं. इसी तरह दिन के मुताल्लिक़ भी पंजशंबा, जुमा, शंबा 3 कौल हैं, जिनमें जुमा का दिन जिन हज़रात ने कहा वो सही रिवायात के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि रवानगी से कबल मदीना पाक में 4 रकात ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना मशहूर रिवायात में है. इस नाकारा के नज़दीक 25 ज़ीक़ादा शंबा के दिन रवानगी रिवायात से राजिह मालूम होती है. After mentioning the ikhtilaf, Hazrat said, my opinion is it was the 25th of Zulqa'dah and it was Shamba, meaning Saturday. Shamba, Saturday, Yak Shamba, Sunday, Do Shamba, Monday, Seh Shamba, Tuesday, Chahar Shamba, Wednesday, Panj Shamba, Thursday, and Juma, Juma. So, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam left on 25th of Zulqa'dah, Shamba meaning Saturday. He prayed Zohar 4 rakats in Medina Sharif, and then he prayed Asr 2 rakats in Zul Hulayfa, because he had become a musafir. He left his city. And when you have intention of traveling 48 miles or more, and you leave your hometown, you become a musafir. So if we were to travel and we go to Manchester Airport, we are musafir. If we were to pray Zohar or Asr at Manchester Airport, we pray 2, not 4, even though we're only 15 miles from Bolton. So he prayed 2 rakats salah over there. शब को ज़ुल हुलैफा में क़ियाम फरमाया और तमाम अज़वाज मुतहरात से जो हमराह थी सोहबत की. इसी वजह से उलमा के नज़दीक अगर बीवी साथ हो तो एहराम से कबल सोहबत करना मुस्तहब है कि एहराम के तवील ज़माने में दोनों के लिए इफ़्फ़त का सबब है. Spend the night in Zul Hulayfa, and at that night he slept with all his wives, 9 of them. And this is why ulama have said that before starting ihram, it is mustahab to have sexual intercourse with the wife, so that ihram will be long for many days. During the ihram, both can remain chaste and stay away from waswasas of shaitan. This is why it is mustahab to do that. दूसरे दिन ज़ोहर के वक्त हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ihram के लिए गुस्ल किया.
So he spent the night there, he had sexual intercourse and he did ghusl janabat. That was before Fajr. But then he stayed there after Fajr, and before Zohar he did another ghusl for Ihram. So there were two ghusl. One ghusl for Ihram, khas specially for Ihram. Ihram ki chadaren zebetan farmai. After ghusl he wore the sheets of Ihram. Zul Hulayfa ki masjid mein Zohar ki namaz ke baad Qiran ka Ihram banda. He started Qiran Ihram in Zul Hulayfa masjid after Zohar Salah. Muhaqqiqeen ulama ke nazdeek Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam ka Ihram shuru hi se Qiran ka tha. His Ihram from beginning was of Qiran. Qiran means combining Hajj and Umrah both together. So on the same Ihram you perform Umrah and then you stay in Ihram until the day of Hajj, and then you do Hajj and then you take your Ihram off. This is called Qiran. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को इख्तियार दे दिया कि जिसका दिल चाहे इफरात तमत्तु क़िरान में से जौन सा चाहे बांध ले। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िरान का ihram बांधा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रात को तशरीफ़ लाकर ये फरमाया था कि ये वादी अक़ीक़ मुबारक वादी है, आप इसमें नमाज पढ़ें और हज और उम्रा दोनों का ihram बांधें। जिब्रील अलैहिस्सलाम came to him at night and said that this valley is called Valley of Aqeeq, which is Barakati Wadi, and you must stay Hajj and Umrah together and say Labbaik of them both together. So this is why right from the onset he had started his Ihram of Qiran, Hajj and Umrah together. For the Sahaba, he gave them an option. You can do Ifrad, you can do Tamattu, you can do Qiran. मस्जिद से इसके बाद मस्जिद से बाहर तशरीफ लाकर ऊँटनी पर सवार हुए और जोर से लब्बैक पढ़ा. Prophet ﷺ said labbaik in the masjid when he started ihram, and then he came out, he sat on his camel and he said labbaik loudly. चूंकि मस्जिद की आवाज़ करीब के आदमियों ने सुनी थी और यहाँ ऊँटनी पर तशरीफ़ रखने के बाद दूर तक आवाज़ गई, इसलिए बहुत से हजरात ने यह समझा कि इसी वक्त हुजूर ने ihram की इब्तिदा फरमाई है. इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ऊँटनी आपको अपनी पुष्ट पर लेकर चली और बैदा की पहाड़ी पर चढ़ी जो जुल हुलैफा के करीब है. चूँकि हाजी के लिए हर ऊंची जगह चढ़ते हुए लब्बैक ज़ोर से पढ़ना मुस्तहब है, इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी ज़ोर से लब्बैक पढ़ा, जिसकी आवाज़ पहाड़ी का ऊंचान होने की वजह से और भी ज़्यादा दूर तक गई. इसकी वजह से सहाबा की एक बड़ी जमात इस जगह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ihram बांधना नकल करती है. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लब्बैक पढ़ते हुए मक्का मुकर्रमा की तरफ रवानगी शुरू की. So he said labbaik on 3 occasions where in the masjid few people heard it. On the camel many people around him heard it. And then when the camel started rising and running on the outskirts into the plain field, he said labbaik loudly, so more people heard it. This is why you get 3 riwayat. Hazrat Shaykh is combining all 3 riwayat of labbaik. हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर ये दरख्वास्त की कि सहाबा किराम को हुक्म फरमा दीजिए कि लब्बैक ज़ोर से पढ़ें. चूँकि हुजूर ने इसका हुक्म फरमा दिया, चुनांचे हुजूर ने इसका हुक्म फरमा दिया. जिब्रील said, tell sahaba to read labbaik loudly. So he informed them and they started reading labbaik loudly as loudly as possible. रास्ते में जब वादी रौहा पर पहुँचे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ नमाज़ पढ़ी और ये फरमाया कि 70 नबियों ने इस जगह नमाज़ पढ़ी है. When they reached at the place called Rawha, where there is Bir Rawha, Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam camped there, prayed namaz, and he said 70 prophets have prayed namaz here as well. We went to Bir Rawha as well. There is a masjid there, very old masjid, and it's only got 3 walls. The rear wall is all broken. The mihrab, qibla is there, and 2 side walls are there, and musallas were spread out over there, various different colors. I prayed my Salatul Tasbih over there. But that Salatul Tasbih was so beautiful, full of concentration, because it was Umrah time, and we were there, our Sati Rufaqa were there, some were at the well, drinking water, filling water, to take them together. So I found it nice time. I said everybody should pray a few rakats. I also went there and prayed namaz. But there was so much ruhaniyat, nuraniyat in that namaz. Because of the simplicity of the masjid and Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam's barakat of praying salat
in that area. So Huzur prayed namaz over there near Bir Rawha, and he said that 70 prophets have prayed namaz over here as well. हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामान और हज़रत अबू बकर का सामान सब एक ऊँट पर था जो हज़रत अबू बकर के ग़ुलाम की सुपुर्दगी में था। जब वादी आरज पर पहुँचे तो देर तक ये हज़रात उनका इंतज़ार करते रहे। बड़ी देर में वो आए और कहा कि ऊँट तो खो गया। हज़रत अबू बकर ने ग़ुलाम को मारा कि एक ही तो ऊँट था, वो भी तुमने गुम कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और इरशाद फरमाते रहे कि इन मुहर्रिम को तो देखो ये क्या कर रहे हैं, यानी एहराम की हालत में ग़ुलाम को मार रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। सहाबा को जब मालूम हुआ कि हुजूर के सामान की ऊँटनी गुम हो गई है तो जल्दी से खाना तैयार करके लाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को बुलाया, फरमाया आओ, अल्लाह ने बेहतरीन ग़िज़ा अता फरमा दी है। हज़रत अबू बकर को मगर बहुत गुस्सा आ रहा था। हुजूर ने उनको फरमाया कि अबू बकर गुस्सा जाने दो। इसके बाद हज़रत साद और हज़रत अबू क़ैस अपने सामान की ऊँटनी लेकर हाजिर हुए और अर्ज़ किया हुजूर ये कबूल फरमा लें। मगर हुजूर ने फरमाया अल्लाह तुम्हें बरकत अता फरमाए, हमारी ऊँटनी अल्लाह के फजल से मिल गई। Some events, incidents along the way, Hazrat Shaykh is narrating that Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam arrived at Wadi Arj. One point I will quote over here which Shaykh has not quoted for some reason, but in Hajjatul Wada Shaykh has written it. Between Bir Rawha and Wadi Arj, he camped at a place called Waddan, and in another riwayat Abwa. Abwa and Waddan are close by, so some muhaddiseen wrote Waddan, which is more famous, and others wrote Abwa. And Abwa is the place where Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam's mother, Hazrat Amina, is buried. So Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam camped over there, and he visited the qabr of his mother as well. And he said on one occasion, I sought permission from Allah to seek forgiveness for my parents, but He did not allow me. I sought permission to visit my mother's grave, and He allowed me that. So visit graves, because visiting graves, it reminds you of your own death. So this is in the hadith. So Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam visited his mother's grave. And Maulana Tariq Jamil Saab goes into great length, and he says he sat there in this manner and he started crying, and he made the Sahaba cry as well. So this is in some riwayat that on one occasion, whether it is this one or other occasion, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam visited his mother's grave. فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ. He cried and he made those cry who were around him as well, because he remembered his mother. Of course, his memories went back 50 years when he was only 6-year-old, and he was passing by with his mother, and she suddenly died along the way. There was no one with him but Ayman, and they somehow dug a grave and buried the grave, and Prophet ﷺ was attached and he wouldn't move, and Ayman had to pull him and then take him away. So imagine a 6-year-old young child who lost his father and was losing his mother in the middle of a desert, and no one there but Ayman with him. What he must have gone through, we can't imagine the suffering, that taklif he must have taken. So now he had visited the grave before as well, but on this occasion he visited there, and then they moved on towards Araj, where this incident happened, which Hazrat Shaykh has mentioned. जब वादी उस्फान में जो मक्का मुकर्रमा के करीब है तशरीफ़ फरमा थे, तो हज़रत सुराक़ा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हमें हज का तरीक़ा इस तरह बता दीजिए गोया हम आज ही पैदा हुए हैं, यानी इस पर इत्मीनान न फरमाएं कि ये बात उनको पहले से मालूम ही होगी। हुज़ूर ने उन हज़रात को बताया कि मक्का मुकर्रमा में दाखिल होकर क्या क्या करें। When they camped at Usfan, so this is not just one journey, this is taking many days. It was total 9 days before they reached there. So the first station was Zulhulayfa, then the second station was Bir Rawha, and then the third station was Abwa and Waddan, the fourth station was Araj, and then the fifth station was Usfan. So these are few stations which Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam made where he camped along the way. So in Usfan, when they were settled there, Hazrat Suraqa ibn Malik asked, Ya Rasulullah, teach us our Hajj as though we were born today, we know nothing about it. Don't think we know everything. Meaning, don't think everything, we know everything. So Prophet ﷺ gave a beautiful summary of the arkan of Hajj, explain how Hajj should be done.
Then they moved on until they arrived at a place called Sarif. Sarif में पहुंचकर, Sarif is about 25 kilometers from Makkah Mukarramah. So they were very close to Makkah Mukarramah. They had camped at Sarif. Hazrat Aisha रज़ियल्लाहु अन्हा को हैज़ आने लगा. वो बहुत परेशान हुई, रोने लगी कि मेरा तो सफ़र ही बेकार हो गया, हज का वक्त करीब आ गया और मैं नापाक हो गई. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी कि ये तो सारी ही औरतों को पेश आता है. फिर उनको बताया कि वो अब क्या करें. In Sarif, Hazrat Aisha's menstruation period started. So she was crying. Prophet ﷺ consoled her and told her what to do. Don't worry, this happens to all women. So just leave your Umrah ihram and start your Hajj ihram. And when you get parked, then do whatever the Haji does, except for tawaf, because you can't do tawaf, that's it. You can't enter Masjid Haram and do tawaf. Otherwise, you can go Mina, Arafat, Muzdalifah, you can make du'as and do zikr, tasbih, istighfar, everything, sadaqah, khairat. So do all that. Just don't do tawaf. And when you get parked, then you can do your tawaf as well. So he taught her the masail of Hajj. सहाबे किराम को इरशाद फरमाया कि जिनके साथ हदी नहीं है वो मक्का मुकर्रमा में दाखिल होकर अपना उम्रा का एहराम खोल लें. मक्का मुकर्रमा के करीब सहाबे किराम, he told them that those who have not brought a camel for sacrifice with them or a cow or a goat, then they should enter Makkah and do their umrah arkan, which is only tawaf, sa'i and halaq, and then get halal. But those who do have their animal with them, they can't get halal until that animal is also sacrificed. So they will have to remain in ihram until the day of Eid Qurbani. मक्का मुकर्रमा के करीब वादी अज़रक़ पर जब पहुंचे तो इरशाद फरमाया कि मेरे सामने इस वक्त वो मंजर है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस जगह पर हज के लिए गुजरे थे और कानों में उंगलियां देकर जोर से लब्बैक पढ़ रहे थे. When he reached Wadi Azraq, he said, I can see Musa alayhi passing by with his ears, fingers in his ears and saying, Labbaik, Allahumma labbaik, labbaik, la sharika laka labbaik, loudly. इसके बाद इस जगह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ी तुवा पहुँचे जो मक्का मुकर्रमा के बिल्कुल करीब है. From then he arrived at a place called ज़ी तुवा, which is very close to मक्का मुकर्रमा. शब को वहाँ क़ियाम फरमाया, spend the night there. सुबह को मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने की गर्ज से गुस्ल किया. In the morning he did ghusl to enter मक्का मुकर्रमा. So ghusl for entering Makkah is mustahab because he's been in ihram for 9 days. So he did ghusl over here and he changed his ihram and then with new ihram he entered Makkah Mukarramah. चाश्त के वक्त 4 ज़िलहिज्जा यकशंबा की सुबह को मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए. On 4th of Zilhijjah, Sunday, he entered Makkah Mukarramah in the morning as the day broke and day rose. उस दिन और इस दिन और तारीख़ में उलमा का सबसे करीब इत्तिफाक है कि मक्का मुकर्रमा में दाखिले की यही तारीख़ है और यही दिन था. बंदा के नज़दीक ज़ी क़ादा का ये महीना 29 दिन का था, इसलिए शंबा को चलकर 9वें दिन मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए. मक्का मुकर्रमा पहुँचकर सबसे अव्वल मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए. ही एंटर्ड मस्जिद हराम, हजर अस्वद को बुसा दिया, किस हजर अस्वद, तवाफ़ किया, परफॉर्म तवाफ़, तहियतुल मस्जिद भी नहीं पढ़ी, डिड नॉट प्रे तहियतुल मस्जिद. मस्जिद में दाखिल होते ही तवाफ़ शुरू कर दिया. इमीडिएटली स्टार्टेड तवाफ़. तवाफ़ से फरागत पर मकाम इब्राहीम पर दोगाना अदा किया. फिनिशिंग तवाफ़ ही डिड 2 रकात एट मकाम इब्राहीम तहियतुत तवाफ़, जिसमें सूरह काफिरून सूरह इखलास पढ़ी. इन विच ही रिसाइटेड सूरह काफिरून और सूरह इखलास. इसके बाद फिर हजर अस्वद को बोसा दिया. देन ही किस्ड हजर अस्वद अगेन और बाबू सफ़ा से निकलकर सफ़ा की पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गए. एंड moved towards Babu Safa and climbed on the hill of Safa. और ऊपर चढ़े यहाँ तक के बैतुल्लाह नजर आने लगा. Climbed on the hill until he could see बैतुल्लाह शरीफ straight ahead of him. फिर बड़ी देर तक तकबीर तहमीद और दुआ करते रहे. And then for a long time he did तकबीर तहमीद and दुआज़. इसके बाद सफ़ा मरवा के दरमियान 7 चक्कर पूरे फरमाए. देन ही डिड सफ़ा मरवा सई, और मरवा पर जब सई से फरागत फरमाई तो जिन हजरात के साथ हदी नहीं थी उनको एहराम खोलने का हुक्म फरमा दिया. व्हेन ही फिनिश्ड सई ही ऑर्डर्ड दोज हु हैड नो कुर्बानी एनिमल विद देम टू ओपन देयर ihram and live normally, put clothes on, everything is halal for them. इसके बाद क़ियामगाह पर तशरीफ़ लाए. 4 दिन क़ियाम फरमाया. Came to his residence and stayed here for 4 days. 8 ज़िलहिज्जा
पंचशंबा को चाश के वक्त मीना तशरीफ ले गए। ऑन 8th Dhul-Hijjah थर्सडे at चाश टाइम ही वेंट टू मीना, और सब सहाबा किराम भी हज का एहराम बांधकर हम रिकाब थे। ऑल सहाबा वर इन एहराम एंड विद हिम। 5 नमाजें मीना में पढ़ी, प्रेड 5 नमाज इन मीना। इसी शब में सूरह वल मुरसलात हुजूर पर नाजिल हुई। इन दिस नाइट सूरह वल मुरसलात was revealed to him in Mina। जुमा की सुबह को तुलूए आफ्ताब के बाद अरफात तशरीफ ले गए। On the morning of Friday after sunrise he departed towards Arafat। और नमीरा में जो खेमा हुजूर के लिए खुदाम ने पहले से लगा दिया था, थोड़ी देर क़ियाम फरमाया। and rested in Namira in a tent which the attendants had erected for him। फिर जवाल के बाद अपनी ऊँटनी पर जिसका नाम कसवा था सवार होकर बतन उरना में जो वहीं करीब है तशरीफ लाए। Then after zawal he rode on his she camel which was named Qaswa, and he came into Batn Urna which is close to Namira। और बहुत तवील खुतबा पढ़ा, and he gave a very long sermon। इस खुतबे में ऐसी अल्फाज भी थे कि शायद तुम इस साल के बाद मुझे न देखो। इन दिस खुतबा ही said words like after this year you might not see me, और ये कि इस साल के बाद कभी मेरा तुम्हारा यहाँ इज्तिमा न होगा, and that possibly I and you will not get together at this place again after this time। And he said similar words, and in that khutbah he gave the farewell sermon which is famous। हज़रत बिलाल को तकबीर का हुक्म फरमाया, and after this he instructed Hazrat Bilal to give azan and takbir, और ज़ोहर असर की नमाजें ज़ोहर ही के वक्त में पढ़ाई, and he prayed both namaz in the time of ज़ोहर। नमाज से फरागत के बाद अरफात के मैदान में तशरीफ़ लाए। Then after finishing namaz he came into the plain मैदान of Arafat, in another riwayat near Jabal Rahmat, और मगरिब तक अपनी ऊँटनी पर दुआ में बराबर एहतिमाम से मशगूल रहे, and kept busy in dua on his camel until maghrib। इसी दौरान हज में उम्मे फुदैल ने यह मालूम करने के लिए कि आपका रोज़ा है या नहीं, एक प्याले में दूध भेजा जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी पर सारे मजमे के सामने नौश फरमाया ताकि सबको मालूम हो जाए कि आपका रोज़ा नहीं है। उम्मुल फज़ल sent a bowl of milk and he drank it in front of everyone to say that he was not fasting on that day, even though it was Arafah day, but he was not fasting because of the Hajj। इसी दौरान में एक सहाबी ऊँट पर से गिरकर मर गए। हुजूर ने फरमाया इनको इहराम ही के कपड़ों में कफना दो, ये क़यामत में लब्बैक पढ़ते हुए उठेंगे। One sahabi fell off his camel onto his neck and he died instantly। Prophet ﷺ said, give him kafan in his 2 ihram sheets, he will get up on the day of Qiyamah saying labbaik Allahumma labbaik। इस जगह नजद की एक जमात बराह रास्त पहुंची और हुजूर से एक आदमी के ज़रिए से आवाज़ देकर दरियाफ़्त किया कि हज क्या है। हुजूर ने एक आदमी को हुक्म फरमाया कि ऐलान कर दो हज अरफा में ठहरने का नाम है। ओवर हियर इन अरफात a group of the people of Najd came and asked loudly that what is Hajj। Prophet ﷺ told someone to announce loudly that Hajj is Arafah। जो शख्स 10 Dhul-Hijjah की सुबह से पहले पहले यहाँ पहुँच जाए उसका हज अदा हो गया। Whoever arrives here before the morning of 10th Dhul-Hijjah then his hajj is done। अबू दाऊद। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब तक उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ बहुत ही इल्हा-ज़ारी से मांगते रहे। हक़ ताला शानहू के यहाँ से उम्मत के लिए मज़ालिम के सिवा और सब चीज़ों की मग़फ़िरत का वादा हो गया। He kept on seeking forgiveness for the ummah and du'as, and Allah forgave everything except for mazalim। Mazalim meaning whatever zulm and nuqsan you have done to someone, he said that won't be forgiven। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी इल्तिजा फरमाते रहे कि या अल्लाह ये भी तो हो सकता है कि मजलूमों को तू अपने पास से बदला अता फरमा दे और जालिमों को माफ़ फरमा दे। That Allah you can forgive the zalim and give something to the mazloom and somehow make things easy for both of them। So Allah subhanahu wa ta'ala did not accept this dua over here, but he accepted the next day in Muzdalifa। इसी दौरान आयत शरीफा नाजिल हुई अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। While he was sitting on the camel, this verse of Takmil Deen was revealed upon him। This is 3 months before his death, that deen is now complete and Allah's favors have been perfected upon us and Islam has been chosen as a deen for us। So this ayat was revealed over here, जिसका बयान पहली फसल में गुजर चुका। जिस वक्त ये आयत शरीफा नाजिल हुई तो वही के बोझ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठ गई, खड़ी न रह सकी। When this ayat was revealed, due to the weight of the wahi, the camel
knelt down and sat. He could not take the weight of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the weight of the wahy. ग़ुरूब की के बाद नमाज से कबल हुजूर वहाँ से रवाना हुए। ऊँटनी ऐसे ज़ोरों पर थी कि निहायत शिद्दत से उसकी बाग खींच रखी थी। वो जोश में दौड़ना चाहती थी। जहाँ ज़रा चढ़ाई आई तो हुजूर ऊँटनी की बाग ढीली कर देते तो उसको ज़ोर से फिर उसको ज़ेर से खींच लेते, हत्ता कि उसका सर बाग के ज़्यादा खींचने की वजह से कजावे से लगा जा रहा था। After sunset, he departed towards Muzdalifah. But the camel was trying to rush, but there was so much crowd, so Prophet ﷺ had to pull the rein so much that sometimes its head came close to its body, and that's how close he had to hold it. And he would let it loose when there was a bit rising so that it can climb with ease. In this manner, he traveled towards Muzdalifah. Hazrat Usama ibn Zayd हुजूर के पीछे ऊँटनी पर सवार थे. Usama was sitting behind him on the camel. एक जगह मुज़दलिफ़ा में रास्ते में मुज़दलिफ़ा के करीब हुजूर को पेशाब की ज़रूरत हुई, उतर कर पेशाब किया, वुज़ू किया. हज़रत उसामा ने वुज़ू कराया. He needed to relieve himself. He got down and he relieved himself and did wudu. हज़रत इब्न उमर का मामूल इत्तिबाए शौक़ में हमेशा ये रहा कि जब भी हज करते तो इस मौके पर उतर कर वुज़ू किया करते और ज़ौक़ में कहा करते कि हुजूर ने यहाँ वुज़ू किया था. इब्न उमर would always in his hajj come down, get off his camel over there and do wuzu and say that Huzur did wuzu over here. Hazrat Usama ने वुज़ू के बाद हुजूर से नमाज की याद दहानी की. हुजूर ने फरमाया आगे चलो. Hazrat Usama reminded him to pray Maghrib namaz. He said keep moving. मुज़दलिफ़ा पहुंचकर सबसे पहले हुजूर ने नए वुज़ू के बाद मगरिब और इशा की नमाज पढ़ाई. इसके बाद दुआ में मशगूल हुए. बाज़ रिवायत में आता है कि इस जगह मज़ालिम के बारे में भी हुजूर की दुआ कबूल हो गई. हुजूर ने बच्चों और औरतों को नीज़ ज़ुआफ़ा को हुजूम में तकलीफ़ होने के ख्याल से रात ही मुज़दलिफ़ा से मीना को रवाना फरमा दिया और ख़ुद तमाम रुफ़ाक़ा के साथ सुबह सादिक़ के बाद सवेरे नमाज़ पढ़कर तुलूए आफ्ताब से मीना के लिए तुलूए आफ्ताब से कबल मीना के लिए रवाना हो गए. और उस वक्त हज़रत उसामा तो पैदल चलने वालों में थे. फ़ज़ल इब्न अब्बास हुजूर के पीछे ऊँटनी पर सवार थे. रास्ते में एक नौजवान लड़की ने हुजूर से अपने बाप के हज के हज बदल का मसला दरियाफ़्त किया. हज़रत फ़ज़ल भी नौ उमर थे. उनकी निगाह उस औरत पर पड़ी. हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से हज़रत फ़ज़ल के चेहरे को दूसरी तरफ फेर दिया कि नामहरम को न देखें और ये इरशाद फरमाया कि आज का दिन ऐसा दिन है कि जो शख्स इसमें अपनी आँख, कान और ज़बान की हिफाजत कर ले उसकी मग़फ़िरत हो जाती है. Some incident mentioned along the way. Huzur said namaz will pray later. He prayed Maghrib Isha with fresh wuzu in Muzdalifah, and some riwayat say his dua of mazalim was also accepted over here. He sent the weak Zu'afa and ladies to Mina early during the night, and then he himself departed after Subh Sadiq, praying Fajr and doing some wuquf. Just before sunrise he left. And Fadl ibn Abbas was riding, and this young girl approached and asked a masla. Fadl began to look at her, so Huzur turned his face away to the other side because he was young as well. And he said, in this day, whoever takes care of his eyes, ears and tongue, then he will be forgiven. रास्ते ही से हज़रत फ़ज़ल ने हुजूर के लिए कंकरियाँ चुनी. Along the way, हज़रत फ़ज़ल picked up pebbles for Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam to throw at Jamarat. लोग मसाइल भी दरियाफ़्त करते जाते थे. People were asking questions. हुजूर जवाब भी फरमाते जाते थे. एक साहब ने दरियाफ़्त किया, हुजूर मेरी वालिदा इतनी बूढ़ी हैं कि अगर सवारी पर उनको बांध कर बिठा दिया जाए तो उनकी मौत का अंदेशा है, क्या मैं उनकी तरफ से हज कर सकता हूँ? हुजूर ने फरमाया अगर तुम्हारी वालिदा के ज़िम्मे किसी का कर्ज होता तो क्या तुम अदा न करते? ऐसे ही हज को भी समझो. जब हुजूर रास्ते में someone asked a mas'ala, my mother cannot sit properly on the camel. If I do her hajj, then would it be okay? And Prophet ﷺ said, if she had some debt, would you pay it off or not? He said, yes, I would. He said, well, do this hajj for her as well. हुजूर रास्ते में वादी मुहस्सर पर पहुँचे जहाँ हक़ ताला शानहू ने अब्रहा के हाथी को हलाक किया था जबकि उसने मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई की थी. हुजूर ने अपनी ऊँटनी को तेज़ कर दिया कि जल्दी से इस अजाब की जगह से आगे बढ़ जाओ. मीना पहुँचकर सीधे जमरे अक़बा पर पहुँचे और 7 कंकरियाँ उसके मारी और लब्बैक का पढ़ना जो इहराम के बाद से अब तक वक्तन फ़वक्तन होता रहता था उस वक्त वो बंद कर दिया. इसके बाद मीना में क़ियामगाह पर तशरीफ़ लाए. बड़ा तवील वाज़ फरमाया जिसमें बहुत से अहकाम का ऐलान फरमाया. Prophet sallallahu alaihi wasallam moved through Wadi Muhassar where Abraha was destroyed
quickly. And he arrived at Jamr Aqaba, did his Rami, and at Rami he stopped his labbaik, and then he came to his place, resting place, and he gave a khutbah in which he mentioned some ahkam, masail of Hajj. फिर कुर्बानी की जगह तशरीफ ले गए. Then he went to the place of कुर्बानी और अपनी उम्र के सालों के मुताबिक 63 ऊँट अपने दस्ते मुबारक से कुर्बानी किए. यहाँ पर हुजूर हजरत मेरे ख्याल में हज्जाम का वो हलक करवाना शायद आगे आ रहा होगा. अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम did कुर्बानी of 63 camels by himself, जिनमें से 6-7 ऊँट उमड़ कर कुर्बान होने के लिए आगे बढ़ रहे थे. 6-7 ऊँट were rushing to get ज़बह at his hand, blessed hands. हर एक ज़बान हाल से जल्दी कुर्बान होना चाहता था. दाग जाते तो हैं मक्तल में, पर अव्वल सबसे देखिए वार करे वो सितम आरा किस पर. 63 के अलावा बाकी ऊँट हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने कुर्बान किए. कुल आदद 100 थे. कुर्बानी के बाद ऐलान फरमा दिया कि जिसका दिल चाहे इनमें से गोश्त का टुकड़ा ले जाए. इसके बाद हज़रत अली से इरशाद फरमाया कि हर ऊँट में से एक एक बूटी लेकर सबको एक बर्तन में जोश दें. उनका शोरबा हुजूर ने पिया ताकि हर ऊँट को हुजूर के नौश फरमाने की सआदत हासिल हो. Then he took one piece of boti from every camel and he soup was made and he drank the soup. अपनी अज़वाज मुताहरात की तरफ से गाय ज़बह की. He slaughtered one cow on behalf of his wives. कुर्बानी से फरागत के बाद हज़रत मामर या हज़रत खिराश को बुलाया, उनसे हजामत बनवाई, सर मुंडाया, लबें बनवाई, नाखून तरशवाए और ये बाल और नाखून जानिसानों में तकसीम करा दिए. कहते हैं कहीं कहीं जो बाल मुबारक मौजूद हैं वो उन्हीं में इसका बकिया है. आफ्टर कुर्बानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम shaved his head and took his, clipped his nail and also his mustache. And because his hair were long and zulfa, wherever people say we have Mu'e Mubarak, then this is from that Hajjatul Wada's cutting which he distributed among the Sahaba. इस दिन में 4 काम करने के हैं. रमी, ज़िबा, सर मुंडाना, तवाफ़ ज़ियारत करना, यही तरतीब इनकी है. इसमें बहुत से हज़रात भूल वगैरह की वजह से तरतीब में तक़द्दुम ताख़ुर हुआ. हर शख्स आकर अर्ज़ करता कि मुझसे बजाय इसके ऐसा हो गया. हुज़ूर फरमाते कोई गुनाह नहीं. देयर इज़ अ सीक्वेंस, सम पीपल रिवर्स द सीक्वेंस. प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नो हरज अपॉन यू. अलबत्ता इसमें गुनाह है कि किसी मुसलमान की आबरू रज़ी की जाए. ज़ोहर के वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए और ज़ोहर की नमाज मक्का मुकर्रमा में पढ़ी या मीना वापस आकर रिवायात में इख्तिलाफ है. और तवाफ़ से फरागत पर जमजम शरीफ के कुएँ पर तशरीफ़ ले गए और ख़ुद डोल खींच कर पिया. He did his तवाफ़ ज़ियारत and then he went into the Zamzam well, he drew water and then he drank the water of Zamzam to his fill. बाज़ रिवायत में है कि हुजूर ने खुद नहीं खींचा बल्कि ये फरमाया अगर मुझे ये डर ना होता कि लोग तुम पर गलबा करने लगेंगे तो खुद खींच कर पीता. लेकिन इन दोनों में कुछ इश्काल नहीं. जमजम शरीफ का पीना बार बार हुआ है इसलिए किसी मौके पर खुद खींच कर पिया होगा और जब हुजूम ना हो और किसी मौके पर हुजूम की वजह से ऐसा फरमा दिया हो, इसमें इश्काल नहीं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमजम शरीफ खड़े होकर पिया और फिर सफ़ा मरवा की दोबारा सई की या नहीं, इसमें इख्तिलाफ है. He drank Zamzam while standing. Did he do Sa'i, Safa Marwa again or not? There is इख्तिलाफ. हनफिया के कवाइद के मुवाफिक तो की है. इसके बाद मीना वापस तशरीफ़ ले गए, 3 दिन वहाँ क़याम किया और रोज़ाना जवाल के बाद तीनों जमरात की रमी किया करते थे. Then he went back to Mina and he used to do रमी जमरात every day after zawal. बाज़ रिवायात में कि इन अय्याम में जब मीना में क़याम था रोज़ाना रात को बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत और तवाफ़ के लिए तशरीफ़ लाते और मीना में क़याम में मुतअद्दिद वाज़ भी हुज़ूर ने फरमाए जिनमें इस किस्म के अल्फाज भी शामिल हैं कि शायद तुमसे फिर न मिल सकूँ. मीना ही के क़याम में सूरह इज़ा जा नसरुल्लाह नाजिल हुई. बाज़ रिवायात में कि हज से क़बल मदीना तय्यबा ही नाजिल हो चुकी थी. मुतअद्दिद रिवायात में कि इस सूरत के नाजिल होने के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरत में मेरी वफ़ात की खबर दी गई है, मैं अनकरीब जाने वाला हूँ. इसके बाद 13 ज़िलहिज्जा शंबा को ज़वाल के बाद आखिरी रमी से फारिग होकर हुज़ूर मीना से रवाना हुए. मक्का मुकर्रमा से बाहर मुहस्सब में, जिसको बतहा और खैफ बनी किनाना भी कहते हैं, एक खेमा में जिसको हुजूर के गुलाम हज़रत अबू राफ़े ने हुजूर के यहाँ तशरीफ़ लाने से पहले ही इस जगह लगा रखा था क़ियाम फरमाया. 4 नमाज़ें ज़ोहर से इशा तक वहाँ अदा फरमाईं और इशा के बाद थोड़ी देर इसमें आराम किया. ये वही जगह है जिस जगह कुफ़ार ने बैठ कर इब्तिदाई इस्लाम में यानी नबूवत के 6ठे बरस में ये मुआहदा किया था कि बनु हाशिम बनुल मुत्तलिब का बाइकाट कर दिया जाए कि न उनसे लेन देन किसी किस्म का
किया जाए, न उनको खाने पीने को कुछ दिया जाए, न उनसे मुलाकात करें की जाए, न सुलह की कोई बात करें, जब तक ये लोग नऊज़ुबिल्लाह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले न कर दें ताकि हम उनको कत्ल कर दें। ये मुआहदा इसी जगह लिखा गया था जिसका किस्सा मशहूर है। हुज़ूर ने आज दो जहाँ का सरदार होने की हैसियत से यहाँ क़ियाम किया और इशा के बाद थोड़ी देर आराम फरमा कर तवाफ़ विदा के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए। इसी रात में हज़रत आयशा को उनके भाई के साथ उम्रा का एहराम बांधने के लिए तनईम भेजा और उम्रा कराया। हज़रत आयशा जब उम्रा से फारिग होकर मुहस्सब पहुँच गईं तो हुज़ूर ने काफ़िले को मदीना तैयबा की तरफ रवानगी का हुक्म फरमा दिया। इसमें इख्तिलाफ है कि इस हज के मौके पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ के अंदर दाखिल हुए या नहीं। दाखिल होना तो मुहक्कक है, लेकिन बाज़ उलमा हज के अय्याम में दाखिल होना बताते हैं। बाज़ हज़रात इस ज़माने के बजाय फ़तेह मक्का के ज़माने को बताते हैं। तवाफ़ विदा से फ़रागत के बाद बाज़ रिवायात के मुवाफ़िक़ नमाज सुबह मक्का मुकर्रमा में पढ़ा कर, जिसमें सूरह वत्तूर हुज़ूर ने पढ़ी, 14 ज़िलहिज्जा सन 10 हिजरी 4 शंबा की सुबह को मदीना तैयबा की तरफ मा खुद्दाम जानिसानान वापसी हुई और जब 18 ज़िलहिज्जा यकशंबा को गदीर खुम पर जो जुहफ़ा के करीब एक जगह है पहुँचे तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊंची जगह मिंबर की शक्ल पर खड़े होकर तवील वाज फरमाया जिसमें हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के मनाक़िब भी इरशाद फरमाए। यही वो चीज़ है जिसको रावजियों ने बिगाड़ कर ईद गदीर से मशहूर कर दिया। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के इरशाद है कि मेरे बारे में दो जमातें हलाक होंगी, एक वो जो मोहब्बत के दावे में इफ़रात करें और दूसरे वो जो अदावत में इफ़रात करें, यानी रावजी और खारजी। इसके बाद जब ज़ुल्हुलैफ़ा पहुँचे तो शब को वहाँ क़ियाम फरमाया। सुबह के वक्त मुअर्रस के रास्ते से मदीना मुनव्वरा में ये दुआ पढ़ते हुए तशरीफ़ लाए, आइबून ताइबून आबिदून लिरब्बिना हामिदून, यानी हम लौटने वाले हैं इसी तरह के तौबा करने वाले हैं अपने गुनाहों से, अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, अपने रब की तारीफ़ करने वाले हैं फ़कत। इंतहा कलाम हो। इस नापाक ने जब सन 42 में एक अरबी रिसाला अरबी ज़बान में हज्जतुल वदा में लिखा था ताकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज की रिवायात मुतफ़र्रिक़ा से मुसलसल तरीक़े से मुस्तहज़र रहें, उसमें हर कौल का माख़ज़ फ़िक़ही मबाहिस भी लिखे थे। इसमें हर रिवायत का हवाला भी दर्ज किया था। इसी से ये वाक़या मैंने यहाँ नकल किया है। इसमें हर वाक़े का हवाला मौजूद है। अभी तक उसके तबाह होने का वक्त नहीं आया। क्या बाईद है कि किसी वक्त अल्लाह जल्ल शानहू के फ़ज़ल से आ जाए। इसके बाद 2 माह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आलम में तशरीफ़ फरमा रहे, फिर रफ़ीक़ आला के साथ जा मिले। हज़रत सिद्दीक़ अकबर खलीफ़े अव्वल हुए, फिर पहले साल हज़रत उमर को अमीरुल हज बनाकर भेजा और ख़ुद तशरीफ़ न ले जा सके, दूसरे साल ख़ुद अमीरुल हज बनकर तशरीफ़ ले गए और फिर वो भी इस आलम से रुखसत हो गए। तो हज़रत उमर खलीफ़े सानी हुए और खिलाफत के पहले साल में हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ को अमीर हज बनाकर रवाना फरमाया और इसके बाद 10 साल तक मुसलसल ख़ुद अमीरुल हज बनकर तशरीफ़ ले गए और अपनी हयात के आखिरी साल में अज़वाज मुतहरात को खुसूसियत के साथ अपने साथ हज कराया। इसके बाद हज़रत उस्मान खलीफ़े सालिस हुए तो पहले साल यानी सन 24 हिजरी में हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ को अमीरुल हज बनाकर रवाना फरमाया और 25 से 34 तक हर साल खुद हज के लिए तशरीफ़ ले जाते रहे। इसके बाद महसूर कर दिए गए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को अमीरुल हज बनाकर रवाना फरमाया। हज़रत सय्यदुल मशारिक़ वल मग़ारिब अली करमल्लाहु वजहू खिलाफत से कबल तो बकसरत हज करते रहे, लेकिन खिलाफत के ज़माने में जंग जमल सिफ़ीन वगैरह की वजह से ख़ुद तशरीफ़ ले जाने की नौबत ना आ सकी। अब आखिर में बस चंद किस्से अल्लाह वालों के हज के रोज़ुल रियाहीन से नकल करता हूँ। बस मैंने यहाँ से पढ़ दिया। अल्लाह पाक हज़रत शेख को जज़ाए खैर अता फरमाए। 15 मिनट रह गए हैं, मुख्तसर ज़िक्र करना पड़ेगा आज, हैं जी। मुख्तसर ज़िक्र कर लेते हैं, फिर मुख्तसर दुआ कर लेंगे, ठीक है जी। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। टेबल को इधर कर लो। हाँ। ला इलाहा इल्लल्लाह सय्यिदुना व नबियुना व शफीउना व हबीबुना व सनदुना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman kathiran kathira. Allahu illallah 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 illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Allah, 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 Allahu Allah,
अल्लाहु अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद नबी व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। परवरदिगार आलम माफ़ कर दीजिए, रहम कर दीजिए, मग़फ़िरत फरमा दीजिए, कबूल फरमा लीजिए, ज़िक्र की बरक़ात नसीब फरमाइए, ज़िक्र पर मुदावमत अता फरमाइए, ज़िक्र के ज़रिया आपका क़ुर्ब नसीब फरमाइए, आपकी मोहब्बत, आपकी मारिफत अता फरमाइए, आपके मुक़र्रब महबूब बंदों में हमें शामिल फरमाइए। या अल्लाह ये ज़ुल्हिज्जा के महीने हैं, आपका नाम कसरत से लेने के महीने हैं, ज़िक्र की कसरत करने के दिन हैं। या अल्लाह इन दिनों में खूब आपका ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। अय्याम मालूमात और अय्याम मादूदात में आपकी खूब याद कर रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए हमें। या अल्लाह हुज्जाजी किराम की दुआओं में शामिल फरमाइए। या अल्लाह हुज्जाजी किराम को हमारी दुआओं में शामिल फरमाइए। या अल्लाह उनका हज आसान फरमाइए। जिन खुश नसीबों को आपने अपने दर पर बुलाया है, या अल्लाह उन सब का हज कबूल फरमाइए, सबको हज मबरूर अता फरमाइए, हज के मनासिक आसान फरमाइए। और या अल्लाह हरमैन शरीफैन और अहले हरमैन की हिफाजत फरमाइए, हर किस्म की बीमारी से बचाइए, वबा और बला से बचाइए, आफत और मुसीबत से निजात अता फरमाइए। पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम फरमाइए। हमारी टूटी फूटी दुआएं सुन लीजिए, हर खैर से मालामाल कीजिए, हर शर से हिफाजत फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।